Good morning, student. Today we are going to our next chapter, that is heat. Heat is a relative concept we have learned in our day-to-day life. Yes, in all around us. So there are different examples which are the related to the heat we have learned. Yes, in our day-to-day life. ठीक है? तो heat, it is a relative concept. I have said it's a relative concept because when you get the idea about the heat, yes, when we compare to the other substances of the other body, that time we have feel or we have get the sense of the heat. Means the heat is a yes one relative concept. It is okay. We are going to about its more account yes in this lesson. So we have let us start our chapter, that's heat. In this heat we have learned some dealing points here. Yes, okay. Which are the consisting subunits in this lesson, that is one is a latent heat, another is a regulation, next one is the anomalous behavior of water, dew point and humidity, specific heat and capacity. Yes, these are one have a consisting unit of this lesson. We have learned one by one with carrying the one experimental activity of each. So first we have recall our brain power. ठीक है. So first we will try to answer this given question. So first question is, what is the difference between the heat and a temperature? So it's very important because yes, such a question is asked in your exam. ठीक है? Because it is a one activity sheets. Yes, okay. So what is the difference between heat and temperature? So listen carefully. दे सकते हैं तो दीजिए आंसर. कोई दे सकता है? व्हाट इज द हीट एंड व्हाट इज द टेम्परेचर? तो हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है? ठीक है बेटा. सो कम टू द पॉइंट, हीट एंड टेम्परेचर. एक्चुअली तो हीट इज अ एनर्जी. हीट कौन है यहाँ पे? हीट इज अ एनर्जी. वेरी गुड. ठीक. अगेन नेक्स्ट. तो हीट इज अ टाइप ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी. एक्चुअली इसे फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं बोल सकते. तो एनर्जी अलग है, फिजिकल क्वांटिटी एक अलग. एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी yes or energy. Heat is the form of a energy. Heat क्या है यहाँ पे? Form of a energy. Yes, is the transfer between two substances at a different temperature. समझ में आता है? तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे कि ट्रांसफर बिटवीन द टू सब्सटेंसेस एट ए डिफरेंट टेम्परेचर. ये हम यहाँ पे मिलता है. अगेन टेम्परेचर क्या है फिर? तो टेम्परेचर इज वन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. अपने आजू बाजू में जितने सारे मैटर्स हैं, तो हर एक मैटर का टेम्परेचर भी अलग अलग दिखाई देता है ना बेटा? दैट्स व्हाई वी विल से टेम्परेचर इज वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. इट्स ओके. एंड द क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस बाय द कोल्ड एंड हॉट. हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कोल्ड एंड हॉट. यस, एंड इट इज वन हैव मैनिफेस्टेशंस ऑफ द थर्मल एनर्जी. ठीक है. प्रेजेंट इन ऑल मैटर. हर एक मैटर में प्रेजेंट रहने वाला क्या है? थर्मल एनर्जी. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं. यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. यस, ओके. आई हैव अगेन रिपीट्स. अभी मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए. तो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन द टू सब्सटेंसेस एज अ डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर देखिए. तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है. एंड दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड हॉट एंड कोल्ड. जैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तीसरा फैक्टर आता है बेटा, इट इज वन हैव अ मैनिफेस्टेशंस ऑफ द थर्मल एनर्जी. ठीक है. तो दीज आर वन हैव अ डिफरेंस इन बिटवीन हीट एंड temperature. Yes, okay. Means temperature. Due to the temperature, we get the effect heat. Heat is one effect of a temperature. Heat is one effect. ऐसा भी बोल सकते हैं. Heat is one effect of a temperature. Next question. What are the different type of a heat transfer? That is one of solid, liquid, and gas. This okay means when you provide the heat to the substance, that is a energy. After the providing energy, change in energy, that is a change in state. Change in energy, change in state.
है ना। जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी में चेंज होगा, बदलाव होगा। तो उसी स्थिति में यहाँ पे हमें एक ट्रांसमिशन मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते हैं उसको, अवस्थान्तर, है ना मराठी में। तो अवस्थांतरित होता है, जैसे कि स्थायी रूप से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, एंड सच transmissions yes okay अवस्थान्तर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। एंड these one have a different form, that is one solid, liquid and gas. these are one how transfer of that matter substance ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव कैरी द वन हैव वन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के को लेकर हम यहाँ पे उसको लर्न करेंगे, ठीक है बेटा। बिफोर इट्स अगेन some points yes which are related to the heat we have already learned in previous class, जैसे कि 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में हमने इनडायरेक्टली डायरेक्टली पढ़े हैं, है ना, उसको लर्न किया है। यस विच आर दे इस एक्चुअली देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमने अलग अलग देखी है, जैसे कि दैट इज वन हाउ एक्सपेरिमेंटली वी हैव लर्न देयर, दैट इज एक्सपांशन। हमने यहाँ पे क्या लर्न किया बेटा, इधर ध्यान दीजिए, ये एक्सपांशन है, यस ओके, एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी ये expansion and contraction, when we have get the expansion and contraction, when we have heat the substance, suppose your mummy make the tea, that time what happened, yes he take the teapot, added a water, mix the sugar and dust, tea dust, just okay, has added again milk, just okay, and heat it, and when he give heat, that she give heat, what happened, yes it goes to the converting into the vapor form, yes okay, that is a change in energy, ठीक है। and due to that energy change, heat is a type of energy, ठीक है। that time we will get the one expansion, means the expansion is what, because the matter is made by the atoms, smallest particle, ठीक है, and they have a attract with each other, they are the bind to with each other, and when you heat provide, that time they are attracting force in between them, yes they goes to the decreases, and they become they loses the force, and due to that they converts, they show the change in their state, means they converts into vapor, yes okay। तो ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा, चलिए देखिए बेटा, कोई भी ऐसे जैसे यहाँ पे पॉट है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे लिक्विड लिया है, यहाँ पे गैस हम यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा इस सब्लिमेशन से यहाँ पे हमें वेपर्स कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे देखिए सेपरेट्स होते हैं, है ना एक्चुअली, एंड दैट टाइम वी हैव गेट द चेंज इन देयर स्टेट्स, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमें अलग अलग ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। एक्चुअली हम देखते हैं बेटा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, सिंपल सा, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इस सिंपल से, हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर बाय विच प्रोसेस, yes that is a conduction and convention and radiation, पहा लक्षात घ्या, म्हणजे इथे काय म्हणलंय, हीट कॅन ट्रान्सफर म्हणजे उष्णतेमुळे काय होतं, ऑब्जेक्ट एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत तो जातो, पण कशामुळे, येस बाय द, दॅट इज अ कंडक्शन, कन्व्हेन्शन अँड रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, रिमेंबर इट, रिपीट कीजिए माइंड में, यस conduction, convention and radiation, yes okay, and due to these, yes okay, substance or the object transfer from one object to the another, ठीक है, दैट्स ट्रांसफर, ये यहाँ पे होते हुए दिखाई देता है। अगेन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, व्हेन द हीट फॉर्म्स वन ऑब्जेक्ट गेट ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण हीट ट्रांसफर होती है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, यस दैट इज अ, इट इज नोन एज अ कंडक्शन। जैसे देखिए ये वाला यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ पे दूसरा वाला एक यहाँ पे बॉल है, तो हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम ए टू द बी, दिस ओके, दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस ओके, दैट इज वन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, that is a transfer of the heat here, and due to that transfer of heat, yes okay, why, because such a transfer here takes place due to the come in contact with each other, ठीक है, and due to that contact, yes they show the conduction, they show the conduction, it is a, और it is known as a conduction। देखिए conduction की definition क्या बन रही है फिर यहाँ पे, when the heat from one object to the
other transfers to the other object directly और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली नहीं होती, जैसे टच में आए तो भी यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में आए तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन कैसे ट्रांसफर होगी? फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. आपली आई भाकरी करते ना, भाकरी करताना भाकरी तवीवरती टाकली म्हणून, भाकरी टाकली म्हणून तवा गरम होतो का नाही? लक्षात येतं? तवा गरम असतो, लक्षात येतं? त्यामुळे आपल्याला भाकरी गरम होताना दिसते. ठीक है, दैट इज वन है. ये क्या है, यहाँ पे कंडक्शन होता है, हीट कंडक्ट होती है ना टच में आने के बाद. म्हणजे भाकरी जेव्हा तव्याच्या स्पर्शाला येईल किंवा तवा जेव्हा गॅसच्या फ्लेमला त्याच्या टच मध्ये येईल तेव्हाच त्याच्यामध्ये कंडक्शन होताना दिसतं. ठीक है, अभी देखिए बेटा, हम हीट को कैसे मेजर करते हैं? हाँ, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी अकाउंट देख रहे हैं इस चैप्टर में हम, यहाँ पे हीट के बारे में. यस, कल हम डिटेल चलेंगे इसको लेकर. चलिए, हीट को मेजर करना है तो हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यस इक्विपमेंट यूज करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट? दैट इज अ थर्मोमीटर. ठीक है, एक्चुअली व्हेन वी हैव विजिट टू द डॉक्टर दैट टाइम, yes, they have also one thermometer there, just okay, for identify the or for, yes, for learning the body temperatures. Yes, yes, okay, getting their results. Yes, for the studying the body temperatures, doctor used a small thermometer, and that thermometer named as a clinical thermometer. Just okay, so such a thermometer, yes, it's gonna have a smaller in size. Yes, okay, we have observed, yes, in our day-to-day life, it's simply one there. Yes, okay, this is one good example. Yes, okay, again we have get the here, that is a different forms of the heat. जैसे कि latent heat क्या होती है? तो latent heat, it is one है energy, एक energy है. जैसे देखिए बेटा, energy is absorbed or the released by the substances during the change in their physical states. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वन latent heat. Yes, and the latent heat is one है normally expressed as the amount of heat. latent heat को हम कैसे ही एक्सप्रेस करते हैं? that is the amount of heat. Yes, okay, normally. ठीक है, एंड द लेटेंट हीट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ हीट. यस, ऐसे हम यहाँ को एक्सप्रेस किया जाता है. तो हमने यहाँ पे लेटेंट हीट के बारे में भी देखा था. एक्चुअली देखिए बेटा, ये इसको हम जैसे डिटेल चलेंगे. यस, यहाँ पे हमें एक एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी यहाँ पे कैरी ऑन करना है. केवल आज हम इस जो जो इन दिस पीरियड, ठीक है, वी हैव ओनली इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. अभी इस पीरियड में हमें केवल चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, एक्चुअली इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी हमें बताया है. इट्स ओके, बाय कैरिंग द ईच एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी ऑफ दिस ईच सब यूनिट. ठीक है, सो वी हैव कैरी द वन experimental activity, that is the first experimental activity. We have learned detail in tomorrow's. Just okay, अभी हम इसको tomorrow देखेंगे, लेकिन actually before it's I have only do the informations requirement of this experimental activities. Just okay, अभी इस experimental activity के लिए हमें requirements क्या लगते हैं? One is the beaker, that is a 500 ml beaker. Next, another is a thermometer. One is the, that is one have a stand. Yes, okay, this is a Bunsen burner, stirrer, ice crystal. ठीक है, these are one have requirements here. Yes, and the graph paper, pencil. चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है? तो देखिए, take a few pieces of ice crystal. Yes, add it into the glass as shown in a figure. Insert the thermometers. Yes, their bubble, mercury bubble inside the ice crystal. जैसे कि मर्क्यूरी बबल कहाँ पे होनी चाहिए? आइस बबल. नहीं तो मर्क्यूरी बबल ऊपर रखेंगे और ये वाला नीचे, तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. ठीक है ना बेटा, तो ये ध्यान में रखना है. जैसे कि एंड गिव द कंटिन्यू हीट. जैसे कि फॉर इट्स वी हैव यूज्ड द ट्राइपॉड स्टैंड. यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड लिया है. ठीक है, विद वायर होल्स. देखिए, पुट द बीकर ऑन अ स्टैंड. यस, एंड हीट द आइस यूजिंग द बर्नर. ठीक है, रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर अप टू द मिनट्स. हर एक मिनट के बाद में हमें क्या करना है? थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है. ठीक है बेटा, एंड कंटिन्यू द हीट. यस, इवन द आइस स्टार्ट टू मेल्टिंग. जब तक आइस मेल्ट नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पे हीट को क्या करते रहना है? कंटिन्यू करना है. ठीक है बेटा, एंड ड्रॉ द ग्राफ of a temperature versus time, and we have observed the graph. Yes, and we have get the conclusion here. ठीक है, and how we have get the conclusions? Yes, it's a more accounts, it's more detail. Yes, we have see in tomorrow's class. Yes, okay, so we'll
वी विल मीट टुमारो। ठीक है, थैंक यू।